हाँ जी, firstly we talked about axioms of probability. आपकी probability की value for any event has to be greater than 0, ठीक है? Sum of all probabilities, आप सारे events की probability को sum up करोगे, ठीक है? This has to be exactly equal to 1, ठीक है? हाँ जी, और क्या axiom था हमारे पास? आपके पास plus third probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ठीक है? Then we talked about probability आपके पास define करती है probability of an event A such that an event has already happened. This is probability of A intersection B divided by probability of B. ठीक है? Or now if the events are independent, so for independent events, probability of A intersection B is probability of A into probability of B. ठीक है? This is for independent events. और अगर mutually exclusive events है, then probability of A intersection B is 0. ठीक है? Then we talked about law of total probability. Or law of total probability के बाद we talked about Bayes theorem, ठीक है? And which states that probability of B by A into probability of B. Okay. This is Bayes theorem. Okay. Today we'll talk about random variables. हाँ जी. So अब तक we have talked about like events हो गए, आपके पास outcome हो गया, experiment, एक experiment define होता है by all its outcome, ठीक है? Now when we have a random experiment, आप अगर coin को flip करते हो, ठीक है? Coin की दो sides हैं, ठीक है? Head and tail. आपके पास इसका मतलब है outcome sample space के अंदर दो values आ रही हैं, head and a tail. इसी तरह से अगर आप bits को transmit करते हो and you're seeing कि if the bits are correctly received or not correctly received. So आपके outcomes में है correctly received and not correctly received. ठीक है? ये क्या है? These are in words defined है, ठीक है? And words don't have a proper mathematical कोई form नहीं है, ठीक है? तो what is random variable? जब आप different outcomes को like this is an outcome, correctly received, not correctly received is an outcome. जब आप उनको map कर देते हो on a real number, ठीक है? That means X is your experiment variable, S your sample space. और आप sample space के अंदर है, sample space के अंदर it can be head, it can be tail, it can be correctly received, not correctly received, it will rain, it will not rain, or there are different kind of experiments. ठीक है? 4 bulbs, 5 bulbs, 1 dot, 2 dot, 3 dot, जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स बन सकते हैं. जैसे आप डाइस को थ्रो कर रहे हो, तो डाइस को थ्रो करने के बाद आपके पास डिफरेंट आउटकम्स है, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट. ठीक है? उसका जब आप मैप करते हो onto a real, ठीक है? आप इसके this is your image, then values के ऊपर आपने मैप कर दिया, ठीक है? So those are like real numbers. ठीक है? जैसे it's more of कि मेरे पास head है and tail है, ये दो ऑप्शन है, ये मेरी सैंपल स्पेस है completely. और मैंने जब इस सैंपल स्पेस को मैप कर दिया onto 0, हेड को मैं 0 के ऊपर मैप कर देती हूँ और टेल को मैं 1 के ऊपर मैप कर देती हूँ, ठीक है? Then it's a random variable. ठीक है? Now this is like one example for it. इसी तरह से जब आप डाइसो करते हो 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, आप उन सबको वैल्यूज के ऊपर मैप कर दो, again it's going to be a random variable. और these values जिनके ऊपर आप मैप करते हो, these are called image of my random variable. ठीक है? इसी तरह से like let's look into another experiment. अगर if I have options of bits correctly received, incorrectly received,
और नॉट रिसीव्ड एट ऑल, ठीक है। ये 3 ऑप्शंस अगर मेरे पास हैं और मैं इन तीनों को मैप करती हूँ ऑन टू अ रियल लाइन, ठीक है। नॉट रिसीव्ड एट ऑल को मैं 0 पे मैप कर देती हूँ, रिसीव्ड करेक्टली को मैं 1 पर मैप कर देती हूँ, उस करेक्टली रिसीव्ड को मैं 2 पर मैप कर देती हूँ। इनकरेक्टली रिसीव्ड 1, नॉट रिसीव्ड 0 एंड करेक्टली रिसीव्ड 2, ठीक है। सो दिस इज माय s of x, my image of my random variable, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक गुड हमजा? जी मैम। ओके, सो इट कैन बी एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के जितने भी आपके सैंपल स्पेस के अंदर आउटकम्स बन रहे हैं और उनको जब आप रियल लाइन के ऊपर प्लेस इन कर देते हो, ठीक है, दोज रियल लाइन वैल्यूज आर द इमेज ऑफ योर रैंडम वेरिएबल, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन द इमेज ऑफ योर रैंडम वेरिएबल वी हैव different types of random variable. Discrete. So when the image values are discrete, 0, 1, 2, 3, ठीक है, then it's a, that means countable values आपके पास, it's going to be a discrete random variable, ठीक है. Second category is continuous random variable. When I have uncountable values in the image, ठीक है, let's say s of x is all values from 0 to 1, ठीक है, 0, 1, like all values are included. अगर मैं इसके ऊपर इसका कुछ भी प्लॉट कर देती हूँ, लाइक ये सब वैल्यूज, जैसे टाइम है, ठीक है, सो व्हेन आई से फ्रॉम 9 to 9:10, अब दैट मीन्स ऑल वैल्यूज आर इंक्लूडेड. इसके बीच में लाइक द वैल्यूज बिटवीन 0 and 1 आर नॉट पार्ट ऑफ इट. इट्स मोर ऑफ s of x is 0, 1, 2, 3 and 4, ठीक है. ये ब्रैकेट क्या डिफाइन कर रहा है कि ओनली दीज वैल्यूज आर पार्ट ऑफ इट. ये ब्रैकेट क्या डिफाइन कर रहा है? ऑल वैल्यूज बिटवीन 0 and 1 आर पार्ट ऑफ इट, ठीक है. Then we have a third category, mixed random variables, which has like both continuous region भी होता है और उसके अंदर एक discrete region भी होता है. We'll mainly talk about discrete random variable and continuous if time permits, but hybrid case को हम cover नहीं करेंगे, ठीक है. So what is a random variable? It's a mapping from the outcomes of a sample space onto a real line, और just real line के ऊपर आप map कर देते हो, those values are your image of your random variable, and they can be mainly of two categories, discrete random variable and continuous random variable, ठीक है. So now we'll talk about discrete random variable. To define any random variable, आपके पास there are 4 different properties जो उसको define कर रही होती हैं, 4 different parameters जो उसको define कर रहे होते हैं, ठीक है. The first one is probability mass function. ठीक है. Probability mass function basically आपके पास क्या define करता है? आपको ये provide करता है with probabilities against each of your image value, ठीक है. अभी हमने क्या define किया था? S of x is my image of my random variable. Now when s of x is the image of the random variable, आप s of x के set को let's say मैं define कर देती हूँ. My experiment is I'm throwing a dice. It has 6 values. मैं 1 dot को 1 पे map करती हूँ, 2 dots को 2 पे map कर रही हूँ, 3 dots को 3 पे, 4, 5 and 6 पे मैंने map कर दिया, ठीक है. So it's a discrete random variable. Image की सारी values discrete हैं. So अब probability mass function क्या define करेगा? Probability mass function define करेगा probability against each of these values, ठीक है. ये वो वैल्यूज हैं जो आपके रैंडम वेरिएबल के आउटकम में आ सकती हैं, ठीक है, कि आपके पास ये चीज रिसीव हो सकती है और इनकी अगेंस्ट क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो रिप्रेजेंट हो जाती है ना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. सो ऑन एक्स एक्सिस वी हैव एस ऑफ एक्स, और हम इसको डायरेक्टली एस ऑफ एक्स की जगह एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है. आई हैव ऑल दोज वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5 and 6, और दिस इज गोइंग टू बी P x is my random variable जिसके लिए बात करें, and a of k, ठीक है. A of k are all those values, ठीक है. This is a0, a1, a2, a3, a4 and a5, ठीक है. आप इसको उस a1 से भी start कर दे तो it's going to be better, a4, a5 and a6, ठीक है.
So k is from 1 to 6, ये आपके पास सब वैल्यूज आ गई हैं इसके अंदर, ठीक है। और इनके अगेंस्ट आप जब प्रॉपर्टी प्लॉट कर देते हो, ठीक है, राइट नाउ मैं रैंडम प्रॉपर्टीज इसके अगेंस्ट मैंने प्लॉट किया, ठीक है। और रैंडम किस लिए किया, जैसे हम डाइस को थ्रो करते हैं, वी यूजुअली से इट्स 1/6, दैट्स लाइक वन काइंड ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, बट द डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स जो और डिस्क्रीट कैटेगरी के अंदर आएंगे, और उनके लिए जब आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को प्लॉट करोगे, सो यू विल गेट लाइक डिफरेंट वैल्यूज फॉर इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट properties of a probability mass function. यहाँ तक समझ आया, राइट? जी मैम। मैम ये जो एक वेरिएबल को दूसरे के ऊपर मैप कर रहे हैं हम, रैंडम वेरिएबल को हम एक वेरिएबल को दूसरे के ऊपर मैप नहीं कर रहे, हम एक आउटकम को एक रियल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप कुछ भी कहते हो ना, आपके पास डिफरेंट वो है, डिफरेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट में आपको डायरेक्टली नंबर्स नहीं मिल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे इट विल रेन, इट विल नॉट रेन, और इट विल रेन विद दिस प्रोबेबिलिटी, इट विल रेन विद 70% प्रोबेबिलिटी, मतलब वो आपके पास डिफरेंट आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक है। So when you have different outcomes and they're not represented quantitatively, ठीक है, तो उसी उनकी क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन इज लाइक उनको आप किसी नंबर से रिप्रेजेंट कर सको। जैसे टेल को हम 0 से रिप्रेजेंट कर सके, टेल ओके, अगर आपको कोई कहे मेरे सैंपल स्पेस में 2 वैल्यूज है, हेड एंड टेल, आई कैन नॉट ऐड हेड एंड टेल, राइट? मुझे उसकी एवरेज कंप्यूट करनी है, मैं ऐसे कर सकती हूँ, हेड प्लस टेल डिवाइड बाय 2। आई नीड नंबर्स फॉर दैट, राइट? सो आप हेड को एक नंबर के ऊपर मैप करते हो, आप टेल को एक और नंबर के ऊपर, हेड को मैं 0 पे मैप कर रही हूँ, टेल को मैं 1 पे मैप कर रही हूँ, देन 0 + 1 डिवाइड बाय 2 मेक सेंस, राइट? ठीक है मैम। हाँ जी। सो दैट मैपिंग, जब आप उसको रियल नंबर्स के ऊपर मैप कर देते हो सारे आउटकम्स को, दैट्स अ रैंडम वेरिएबल देन, ठीक है। तो रैंडम और ऑल द वैल्यूज जिनके ऊपर आपने मैप किया है, वी कॉल इट एज इमेज ऑफ माय रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ठीक है। बट वंस यू हैव द इमेज वैल्यूज, अब वो इमेज क्या रिप्रेजेंट करिए कि मेरे एक्सपेरिमेंट के आउटकम में ये वैल्यूज आ सकती हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो वैल्यूज आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम में आ सकती हैं, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट दोज वैल्यूज, दैट्स योर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ माय प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब एक्सक्यूज मी मैम, मैम जी जी बोलो। मैम ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये सेम ही है? हाँ जी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जनरल कैटेगरी है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम डिस्क्रीट और रैंडम, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल दोनों के लिए टर्म यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ डिस्क्रीट के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की टर्म भी यूज हो सकती है, इट्स द सेम, बट मैं कंटीन्यूअस के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की टर्म को यूज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। सो इट्स बेसिकली, आप अगर इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलना चाहो तो यू कैन कॉल इट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है मैम। हाँ जी, okay. So now let's talk about properties. So what I have is random variable x, p x of a k, ठीक है, और उनके अगेंस्ट मेरे पास डिफरेंट प्रोबेबिलिटी वैल्यूज हैं। Okay, now each of my value cannot be, the first property that we have is, which makes sense, right? कि probability cannot be less than 0 and greater than 1. So each value has to be between 0 and 1. सेकेंड इज कि अगर आप इन सब प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज को सम अप करते हो, ठीक है, कि ऑन ऑल वैल्यूज में, दिस इज माय इमेज ऑफ माय रैंडम वेरिएबल, मैं सब वैल्यूज के ऊपर सम अप कर रही हूँ पी एक्स ऑफ ए के को, तो रिजल्ट किसके इक्वल होना चाहिए? हाँ जी, अगर आपने सारी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज को सम अप किया तो रिजल्ट क्या आएगा? हेलो, आप लोग को आवाज आ रही है? मैम 1 आएगा, 1 1। हाँ जी, थैंक यू।
क्योंकि आपके पास दीज आर द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, अगर वो उन सब ऑल पॉसिबल आउटकम्स के अंदर आपके पास ये सब पॉसिबल आउटकम्स आ सकते, तो आपकी वन प्रोबेबिलिटी उन्हीं के बीच में डिवाइड हुई है, ठीक है। सो जब आप उन सबको एड अप कर दो तो रिजल्ट इज गोइंग टू बी वन, ठीक है। सो दीज आर द टू properties of probability mass function that we have. Or from probability mass function, the second thing that we have is cumulative distribution function. CDF. Okay, probability mass function क्या represent कर रहा होता है आपके पास? Probability against each of your image value. CDF क्या represent करता है? It's, अगर आप इसकी terms को भी understand करो, cumulative distribution function. ये represent करता है कि probability up till a certain point. अगर मेरे पास image की value के अंदर है 1, 2, 3, 4, ये 4 values हैं जो मेरी image की आ सकती हैं, ठीक है। So अगर मैं 1 के ऊपर CDF को represent करूंगी तो it's going to be, CDF के लिए हम fx of small x ये term use करते हैं, ठीक है। So अगर मैं 1 के ऊपर CDF को express कर रही हूँ तो I'm going to write it down as fx of 1. That means I am writing it down, fx of 1 का मतलब होगा कि all probabilities summed up till 1. तो अब 1 तक, 1 से पीछे तो और कोई है ही नहीं, ठीक है। तो this is going to be px of a1, ठीक है। इसके आपके पास जो इसकी फर्स्ट टर्म की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं सिर्फ a को भी हटा देता है, I'll just write this down as 1, ठीक है। ये आपके पास आ गई है। अब अगर आप सेकंड पॉइंट पे मूव करते हो उसके बाद, which is fx of 2, ठीक है। ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये आपके पास 4 है, ठीक है। x एंड यहाँ पे मेरे पास CDF of x है, ठीक है। सो 1 के ऊपर आपके पास एक वैल्यू आ गई है, 2 की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी? 2 की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी आपके पास ऑल प्रोबेबिलिटीज। अगर मैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ड्रॉ कर देती हूँ साथ, दिस इज माय प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। ये 4 वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मेरे पास ड्रॉ हुआ है। सो CDF में 1 के ऊपर वैल्यू सिर्फ यही वाली आएगी, 2 के ऊपर वैल्यू क्या आएगी? 1 की वैल्यू और 2 की वैल्यू दोनों एड अप होकर आ जाएंगी, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी px of 1 plus px of 2. Similarly, third bit is going to be px1 plus px2 plus px3. Or fourth bit is going to be px of 1 plus px of 2 plus px of 3 and plus px of 4, ठीक है। अब अगर आप देखो, so from fx of 1 it's px of 1 only, ठीक है। 1 फिर सेकंड के अंदर 2 टर्म्स है, थर्ड 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, एंड ईच टर्म इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, ठीक है। सो आपको क्या पता होगा कि fx of 1, इससे प्रीवियस जो आपके पास रीजन होगा जब आप इसके लिए ड्रॉ कर रहे हो, इससे प्रीवियस वाला जो रीजन होगा उसके ऊपर द वैल्यू इज गोइंग टू बी 0, और 1 के बाद वाला जो रीजन होगा द वैल्यू इज गोइंग टू बी 1, क्योंकि 4 के ऊपर से सारी प्रोबेबिलिटीज एड अप हो चुकी हैं, ठीक है। और the function between 1 से 4 तक it's going to be an increasing function, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? मेरी आवाज भी आ रही है सबको? जी मैम समझ आ रहे हैं। ओके, सो इसको अगर हम मैथमेटिकली fx of x को अगर मैं सिर्फ जनरलाइज फॉर्म में हम किस तरह से लिख रहे होते हैं, हम इस x के ऊपर CDF को लिख रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी लाइक प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल x, ठीक है। और योर CDF इट्स ऑलवेज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि हम डिस्क्रीट के केस में करें, डिस्क्रीट में स्टेप की तरह आ रहा होता है फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये 1 होगा और इससे प्रीवियस इट्स 0, ठीक है। और
Hanji, now let's talk about a few properties for them. CDF at any point, fx of x is between 0 and 1. Second is कि अगर आप किसी भी दो वैल्यू का CDF लेते हो, लाइक एक वैल्यू में यहाँ पर ले लेते हो a और ये वैल्यू b, ठीक है. So अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि a is less than equal to b. So when the value a is less than equals to b, so it's an increasing function. So increasing function की वजह से CDF at a is going to be less than equal to CDF at b. So for a less than equal to b, fx of a is going to be less than equal to fx of b. ठीक है, this property says कि it's a monotonically increasing function. And thirdly, what I said is कि यहाँ से previous value पे 0 है और यहाँ से आगे वाली value पे it's 1. अब हम इससे previous value को minus infinity count करते हैं, उससे आगे वाली value को हम plus infinity count करते हैं, ठीक है. So limit x tend to infinity fx of x, the result is going to be 1, and limit x tends to minus infinity fx of x, the result is 0. ठीक है. अब जैसे मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर आप देखो, this is fx of 1, fx of 1 plus fx of 2. So I can write the same expression down as fx of 1 plus px of 2. अब अगर आप इसको देखो, so this part is basically fx of 2. So I can write this down as fx of 2 plus px of 3. Similarly, this part is fx of 3 और fx of 4 अंदर add हो रहा है. So I can write this down as fx of 3 plus probability at 4. So CDF at 3, अगर आपने fourth के ऊपर CDF को compute करना है, value last value पे आपने CDF को compute करना है, so आप previous CDF के अंदर next वाली probability को add up कर रहे हो. ठीक है. Okay, so next we'll talk about, these are a few properties of CDF. आपके पास CDF के बाद the next thing is expected value of a random variable. We have talked about probability mass function, CDF, cumulative density function, distribution function, and third is expected value. Expected value और mean value, ठीक है. So, अगर आपको let's say अगर मैं आपको value देती हूँ 1, 6, 7, 9 and 13, मुझे इसके लिए mean value बता सकते हो क्या होगी? कर सकते हैं value के लिए mean को calculate? हाँ जी, कोई 4 students connected है, give me the expected value for these. It's 11 o'clock. Hello. Hello. आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? मैम इसकी 7.2 इसका मीन आएगा. 7.2. हाँ जी, और किसी ने कैलकुलेट किया? और कोई कनेक्टेड? मेरा भी 7.2 आ रहा है. 7.2. ओके, थैंक यू. ओके, अब अगर आपने 7.2 इसके रिजल्ट को कंप्यूट किया तो आपने एक्चुअली किस तरह से कंप्यूट किया? लेट्स से यू आर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x, ठीक है. लेट मी कॉल इट रैंडम वेरिएबल x. ये रैंडम वेरिएबल x के इमेज वैल्यूज हैं, ठीक है. तो आप इमेज वैल्यू का जब आप मीन कैलकुलेट कर रहे हो, आपने किस तरह से कैलकुलेट किया? 1 + 6 + 7 + 9 + 13 divided by 5.
ऐसे ही कैलकुलेट किया है? जी मैम। सबने ऐसे Yes, कैलकुलेट ma'am. किया? हाँ जी, ठीक है। सो अब अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करो, अगर मैं इसको दोबारा से स्प्लिट करके लिखूं, इट्स मोर ऑफ व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग इज 1/5 into 1 plus 1/5 into 6 plus 1/5 into 7 plus 1/5 into 9 plus 1/5 into 13. This is the weight and this is the random value. ठीक है, आप उसको ये weight assign किया हुआ है और ये आपने इसकी value है. This is the weight, again the value, weight, the value, weight and value. ठीक है. So expected value is basically the weighted sum. The question is, how have you assumed that the weight is going to be 1/5? Like, why have you assumed it is 1/5? This is not correct. You can only assume the weight to be 1 when it's a uniform random variable. That means all values exist with the same probability. ठीक है? आपके पास अगर ये 5 values थी, आपको कौन सी values given है? 1, 6, 7, 9 and 13. और ये x of a k something, ठीक है? So अब आप लोगों ने क्या assume किया हुआ है कि they are equally probable. 1/5 ये आपने assume किया है, पर मैंने आपको इसकी कोई information provide नहीं की है, ठीक है? When the information is not provided, you cannot calculate the expected value. Whenever only the image values are given, you're supposed to ask what random variable it is. What random variable it is or what is the probability mass function for it. ठीक है, आपको probability mass function पता होगा तो आप उसके expected value को compute कर सकते हो. Expected value को compute करने का the method is you should be aware of. अभी आपको what are you given? आपको सिर्फ given है the value of your random image of your random variable. Yes, 1, 6, 7. ये आपके पास 5 values given है, ठीक है? For probability of x, again, आपको इन सबके against probability required होगी to compute the expected value. So the expected value of x is summation ak element of s x ak into probability of x at ak. So basically you need probability against all of these values. Let's say अगर मैं आपको इनके against probability provide कर देती हूँ 1, 6, 7, 9 and 13. ठीक है, ये आपकी different values हैं. 0.4, 0.3, 0.1, 0.1 and 0.1. सबसे पहले तो इसके ऊपर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करो, ठीक है? Each value has to be between 0 and 1. All values are between 0 and 1. उसके बाद sum of these values should be, हाँ जी, sum of these values should be equal to 1. So 0.4 plus 0.3, 7, plus 0.1, 0.8, plus 0.1, 0.9, plus 0.1, 1. So second property, then it is a genuine probability mass function. So अब आप इसके लिए expected value किस तरह से compute कर सकते हो? Expected value of x is basically 1 multiplied by 0.4 plus 6 multiplied by 0.3 plus 7 into 0.1 plus 9 into 0.1 plus 13 into 0.1. The result is 5.1. ठीक है, इनिशियली आप लोगों ने इसको क्या कंप्यूट किया था 7.2, बट एक्चुअल रिजल्ट क्या आपके पास 5.1. अब अगर आप इस प्लॉट के ऊपर देखो इसको, इट्स 1, 6, 7, 9 and 13.
one was 0.4, 0.3 और ये तीनों आपके पास है 0.1, 0.1 and 0.1. ठीक है, जब आपने 7.2 कंप्यूट किया तो व्हाट यू आर सेइंग इज ऑन एवरेज द वैल्यू इज गोइंग टू बी 7.2. यहाँ कहीं वैल्यू लाई करी है, बट अब रिजल्ट क्या है? रिजल्ट आया है 5.1 somewhere here, right? So, वो किस वजह से आ रहा है? The influence of these probability is more. ये ज्यादा हायर वैल्यूज है, ये आपके पास स्मॉलर वैल्यूज है. ठीक है, सो जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की कम है, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से फार होगी. आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स दोज वैल्यूज व्हिच आर हायर, दोज प्रोबेबिलिटीज व्हिच आर हायर. ठीक है, so that's why it's expectation में आपके लिए the weight of each value is very important. कि आपके पास इमेज की जो each value है वो उनका probability mass function क्या है आपके पास. ठीक है, हाँ जी, all good. So okay, next we'll talk about variance of a random variable. So we're done with probability mass function, cumulative density distribution function. Next was expected value, and the last one is variance, or we can अगर आप इसी variance का square root ले लो तो this is your standard deviation. ठीक है, variance क्या define कर रही होती है आपके पास? Amount of variation of a random variable around its mean. जैसे अभी हमने मीन वैल्यू कंप्यूट किया 5.1. सो हम 5.1 से व्हाट डू वी से कि ये कितना वेरी कर सकती है 5.1 से ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, अराउंड द मीन. और आपके पास इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन इज वेरिएंस ऑफ x, और हम ये सिंबल भी यूज करते हैं इसके लिए. इट्स मोर ऑफ a के एलिमेंट ऑफ sx. समेशन एग्जैक्टली जो हम मीन के अंदर समेशन कर रहे हैं वही सेम समेशन है, बट फ्रॉम ईच वैल्यू, लाइक जो भी हमने वैल्यू थी जैसे 1, 7, 6, 7, वो आपकी डिफरेंट इमेज की रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है, आप उसमें से मीन को सब्ट्रैक्ट करते हो. नाउ व्हेन वी से वेरिएशन अराउंड द मीन, सो इट इज गोइंग टू बी ऑन द पॉजिटिव और नेगेटिव साइड बोथ, तो इसलिए हम इसको स्क्वायर कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि दे आर गोइंग टू बी वैल्यूज जो स्मॉलर देन द मीन है और फिर ग्रेटर देन द मीन है. ठीक है, सो आप इसका स्क्वायर कर रहे हो और उसके बाद आप इसको with each of their weights multiply कर रहे हो. ठीक है, so this is your variance. आप इसको कंप्यूट कर सकते हो. अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू पता है तो आप इसकी वैल्यू, सिर्फ आप एक्सपेक्टेड वैल्यू को अपने रैंडम वेरिएबल की वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है, स्क्वायर करना है और वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर ऑन ऑल वैल्यूज सम अप करना है. ठीक है, I'll share the slides, उसके ऊपर variance की value computed है, so you can try that. And once you have the value of your variance, you can take the square root of it. It's going to be your standard deviation. ठीक है, हाँ जी, all good? हाँ जी, इसके अंदर कोई इशू समझ आ रहा है सबको? जी. देखो, आप लोग क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो मुझे नहीं पता चलेगा क्या समझ आया क्या नहीं आया. ठीक है, कौन कौन कनेक्टेड है? अपने नाम बताएं जरा मुझे सब. मैम हामिद. हाँ जी, हामिद. और कौन है? ओके, इकरा. हमजा. हमजा, इकरा, हामिद. ओके, एक मैम सादिया है, एक मैं हूँ. हु इज द लास्ट पार्टिसिपेंट? किसने मुझे म्यूट किया हुआ है? सो ओके, एनीवेज नेक्स्ट विल टॉक अबाउट. ओके, आपके पास रैंडम वेरिएबल सबको समझ आ गया. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो भी आउटकम की वैल्यूज है उनको रियल वैल्यू पे मैप कर रहे हैं, वो आपका रैंडम वेरिएबल बन गया. जो रियल वैल्यूज हैं, वी कॉल दोस रियल वैल्यूज एज इमेज ऑफ माय रैंडम वेरिएबल. वंस यू हैव द इमेज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, उसके बाद फॉर अ रैंडम वेरिएबल देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स. द फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ईच इमेज के अगेंस्ट आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बताएगी. ठीक है, उसके बाद कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो आपको फॉर एनी वैल्यू वहां तक की सारी प्रोबेबिलिटीज बताएगी. ठीक है,
So it is more of fx of x is probability x is less than equals to small x. ठीक है? This is cumulative distribution function. Expected value, weighted average. Okay, you need to know the weights of each of your image value, और वो weights आपको probability mass function के अंदर से मिल रहे होते हैं. तो आप expected value calculate कर सकते हो, and variance is your variation around the mean value. ठीक है? So ये किसी भी random variable के ये आपके पास different parameters हैं. Now there are certain standard random variables defined. ठीक है? जो probably आप लोगों ने पहले कभी सुने भी होंगे. ठीक है? जैसे the first one is uniform random variable. Now there are certain experiments जिनको हम uniform random variable के ऊपर map करते हैं. Okay, जब मैं standard random variables की बात करूँ ना, I'm telling you कि ये इस तरह के processes को आपके पास कुछ standard processes हैं. जैसे हम dice को throw करते हैं, when we say it's a fair dice, then it's going to be, आपको पता है उसके अंदर से 6 outcomes निकल सकते हैं और उन 6 outcome की probabilities equal है. Then this kind of a random variable is a uniform random variable. All those random variables, right now we're talking about discrete random variables, which has discrete image values, and the probability of each of the image value is exactly the same. Okay? Then all those random variables are basically uniform random variable. Or uniform random variable के लिए your plot is आपके पास इस तरह से आ रहा होता है x, all those values और जो भी values है वो सब are equally probable. ठीक है? And this is 1 by n. ठीक है? हाँ जी, ठीक है. Now अब आपको अगर इसकी expected value compute करनी है तो आप इसकी expected value compute कर सकते हो. Similar manner में 1 by n को आप multiply कर रहे हो. This is the random variable जिसके लिए expected value 7.2 आप लोगों ने compute की थी. ठीक है? क्योंकि all of them are equally probable. So basically it's more of आप जब expected value इसके लिए compute करते हो तो आप 1 by n और आपने sum up कर दिया on all your values. ठीक है? और similarly आप इसके लिए variance को भी compute कर सकते हो. ठीक है? So the next random variable, again it's a standard random variable we'll talk about, is called Bernoulli random variable. आप में से किसी ने random variables पहले पढ़े हैं? जी मैं आप इसके अलावा किसने पढ़े हैं? बस सिर्फ हामिद ने पढ़े हैं? इकरा आपने? अमीर हमजा आपने पढ़े हैं? Hello? I think we have like less than 1 minute left, so I'll just disconnect. मैम साथी आप दोबारा से connect कर दें तो we'll start next topic से. ठीक है?